I'm Sunita Sopti, your English educator. Welcome you all to my English Buster classes. Today I'm going to introduce how to write down a notice. It's a very most important form of writing, and the heading is found in lost notice. Now let's discuss about the question. You are Ketan Sharma, a student of 6th at SK Global School, Delhi. Okay. Before I proceed, you and I just guide you what is the exact format of writing the notice. A few things should be taken under consideration before writing the notice. Number one, the word limit must be 50. It should not be exceed more than 50. And notice must be written in a box. There are two conditions which must be followed by every student. Okay. Now, there are few comma lines which can be applicable in while writing any kind of the notice. Let's see what are they. Okay, first condition is that the notice is written in a box, that I have mentioned the box here. Now, if you are supposed to write down the name of organization or institutions and along with the city, and it must be written in block letters. Not even a single letter must be written in small one. It must be written in block letters. देखो जैसे मैंने क्या लिखा है SK Global School. अब आप देखो each and every letter is in block letter. And there is one more condition. As in the question, the school name has already mentioned. Then you are not free to write down the school of your choice. यदि आपको क्वेश्चन में नहीं मिलता तो you can write down the name of institution or organizations of your own choice. तब आप लिख सकते हैं. अदरवाइज यदि आपको यहाँ क्वेश्चन में मिलेगा तो प्लीज आप वही लिखिए, अदरवाइज इससे नंबर डिडक्ट होंगे आपके. सेकेंड, जस्ट बिलो द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस नेम आपको क्या लिखना है? नोटिस अगेन इन ब्लॉक लेटर. देखो just NOT each and every letter in block letter. Then move to the correct way of writing the date. Some people I have observed that some students just write down the date like this way, putting slash or hyphen, and this is not the correct way of writing the date. You have to mention the date exactly as I have mentioned. Date के साथ month, then year. Okay. Now, this is the heading of the notice. This must be eye catching. बहुत अट्रैक्टिव होता है. यही आप अटेंशन ड्रॉ करने के लिए होता है सबसे ज्यादा. और ये भी कैपिटल में लिखा होता है. As the topic is found and closed, it would be preferable कि आपको यदि water bottle लिखना है तो आप लिख सकते हो water bottle found, pen found, bag found. You can write down the name of article. In case if you do not want to bother yourself, it would be preferable if for writing found you can use exclamatory sign or each and every letter in capital. It would be a really eye-catching heading. Okay, जैसे lost हुआ, found हुआ, it's enough. Okay, now proceed to its content. अब इसका content क्या होता है बेटा? देखो आपको आधे से ज्यादा लाइन आपको क्वेश्चन से कॉपी करनी है. जैसे देखो, you have found a water bottle laying unclaimed near the water point. आपको क्या आपको मिला है? water bottle. कहाँ मिला है? water point के पास. तो आपने क्या लिखा? a water bottle has been found laying unclaimed. unclaimed मतलब अभी किसी ने उसके लिए क्लेम नहीं किया कि कौन सी चीज ये वाली चीज किसको बिलोंग करती है और कहाँ मिली? नियर द वाटर पॉइंट. आपने इसको क्या किया है? सिर्फ कॉपी किया है. ठीक है. अब आपको क्या लिखना है? देयर आर टू लाइन्स विच must be marked by you, or क्योंकि it is and if you want to get 4 marks out of 4, तो these are the lines which are required to be marked up. वो देखो, anyone who has lost it, या तो किसी का lost हो गया या left by mistake हो गया, identify कर सकते हैं, claim कर सकते हैं. कौन से? from the undersigned during recess within 2 days of this notice. यहाँ पर आपको ये 2 लाइन्स में बिल्कुल बॉदर नहीं करना. और इसमें आपको क्या करना है? इन केस इफ यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, स्कूल का लाइब्रेरी कार्ड गुम गया या किसी का होगा, आपको सिर्फ लिटिल बिट चेंज आपको रिक्वायर्ड होगा. यहाँ पर आपको उस चीज का ऑब्जेक्ट का आर्टिकल लिखना होगा. बाकी आप सेम आपको कॉपी करना है मैटर. इन केस इफ यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन द नोटिस ऑफ फाउंड.
नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच शुड बी आल्सो टेकन अंडर कंसिडरेशन। देखो आपको केतन बोला है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो 6T का बच्चा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट इज रिक्वायर्ड टू साइन अप, केतन की तरह साइन करना। और केतन शर्मा का जब आप नाम लिखेंगे, जो भी आप नाम लिखते हैं, इट मस्ट बी ऑल्सो रिटन इन द ब्लॉक लेटर्स। और फिर आइडेंटिफिकेशन डेजिग्नेशन बतानी है। डेजिग्नेशन है कि आप कॉलेज क्लास मॉनिटर के द्वारा, ये प्रिंसिपल के द्वारा, टीचर के द्वारा, हेड बॉय के द्वारा, हेड गर्ल के द्वारा, यदि आपको आइडेंटिफिकेशन यहाँ बता रखी है तो वो आपको सेम की सेम लिखना है। यदि मैं ऐसे सीधा लिख देती हूँ, यहाँ मुझे सिर्फ यहाँ लिखा है केतन शर्मा, आइडेंटिफिकेशन डेजिग्नेशन नहीं बता रखा, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ द क्लास मॉनिटर, हेड बॉय, हेड गर्ल, किसी तरह से भी मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अब यदि आपको लोस्ट के टॉपिक पे लिखना है आपको आर्टिकल, तो आपको इसकी जगह क्या करना होगा बेटा, सिंपली एक चीज आपको रिक्वायर्ड होगी, यहां पर आपको क्या करना है, लोस्ट, लोस्ट, देन लोस्ट, नथिंग। ठीक है, और फर्स्ट लाइन हमने फाउंड वाले से कॉपी करनी है। लोस्ट के टॉपिक में लिखना है आर्टिकल नाउ नोटिस, लेकिन हम कॉपी कहां से करेंगे, फर्स्ट वाले फाउंड की लाइंस को देखेंगे। आप देखो, वाटर बॉटल हैज बीन फाउंड की जगह हमें लिखना होगा लोस्ट, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, टॉपिक लोस्ट। ठीक, अब हमें ये नहीं लिखना, वी हैव टू रिमूव ऑल दीज लाइंस, लेकिन यहां लिख सकते हैं अनक्लेम्ड वाली, लेन वाली क्रॉस करो, near the water point in B block. You can write down the same line in while writing the notice on lost. Okay? अब यहाँ पर आपको little bit change required करता है, वो क्या है, now as you have lost something, तो आपने lost हुआ है, तो आपने बताना तो होगा, क्योंकि आपको वो चीज वापस चाहिए, you want to get, you just want to get that article, lost article back, आपको वो चाहिए, तो आप क्या होगा, आपको उसका डिटेल बताना पड़ेगा। आपको सिर्फ लिटिल बिट डिफरेंस क्या होगा कि हम जब फाउंड वाला होता है तो हम उसकी आर्टिकल का आइडेंटिफिकेशन नहीं बताते, लेकिन लॉस्ट का होता है तो हमें आइडेंटिफिकेशन बताना होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस्ट एंड फाउंड। अब क्योंकि फाउंड पे हम बताएंगे तो एनीबडी कैन क्लेम फॉर दैट, लेकिन इन लॉस्ट में यदि है तो हमें आइडेंटिफिकेशन बताना होगा, क्योंकि हमें एट एनी कॉस्ट वी जस्ट वांट आवर थिंग्स बैक, हमें हर हालत में अपनी चीजें वापस चाहिए। अब जैसे मेरी वाटर बॉटल है तो आप आप बता दो कि इट इज इन स्क्वायर इन साइज, इट इज इन अ रेड कलर, देयर इज अ स्कूबी डूबी स्टिकर्स ऑन इट एंड इट हैज अ सिल्वर लिड। यू कैन टेल, यू कैन डिस्क्राइब अबाउट द ऑब्जेक्ट व्हिच यू हैव लॉस्ट, and 1 or 2 lines are enough to describe the thing। आप क्या लिख सकते हो, it has a black lid, or it's rectangular in shape, or it is you can mention the name of the brand। सिर्फ 2 or 2 lines are enough to give the detail of that thing। और उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप बता सकते हो एनीवन की जगह यहाँ पर आपको क्या था, इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन बताना है। लोस्ट में आपको अपनी चीज का आइडेंटिफिकेशन बताना है कि किस तरह का शेप था, क्या साइज था, किस ब्रांड का था, जिससे आपको अदर पीपल विल हेल्प यू टू फाइंड आउट योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एनीवन हु, जिसको भी वो मिलता है, फाइंड्स इट, किसी को वो मिलता है, कैन, अब इसकी जगह आप कर सकते हो कैन रिटर्न, और फ्रॉम की जगह क्या आएगा, टू, कैन रिटर्न टू द अंडरसाइंड ड्यूरिंग रिसेस विद इन 2 days ऑफ दिस नोटिस। ये आप ये नहीं लिख सकते, वो तो जब भी मिलेगा कोई नहीं, ड्यूरिंग अंडरसाइंड ड्यूरिंग द रिसेस। ठीक है, ये आपको सेम का सेम लिखना है। बस आपको मैंने क्या बोला है, फर्स्ट लाइन कॉपी करनी है लोस्ट में, देन आपको 2 और 3 लाइंस में आइडेंटिफिकेशन बताना है, एनीवन। और अच्छा, एक वन थिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जब आप लोस्ट का लिखोगे, अ सुटेबल रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, आप इसमें एक लाइन जरूर ऐड करना, अ सुटेबल रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड, क्योंकि आपकी कोई हेल्प क्यों करेगा, कौन सी चीज टेम्प्ट करेगी लोगों को कि आपकी चीज फाइंड आउट करो, ये 100% ये लाइन लिखनी है लास्ट में। एनीवन हु फाइंड्स इट रिटर्न टू द अंडरसाइंड, वो 2 days मत लिखना, कभी भी लगा सकता है, ड्यूरिंग रिसेस a suitable reward is promised, this line is
the most important line which must be mentioned while writing the notice of lost. And again the वही सेम आपको ये आपको ये जो फॉर्मेट रहेगा वो सेम का सेम रहेगा whether you are writing lost or found. I hope you have understood. Thank you.